Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss part 4 General Financial Rule 2017 related to the procurement of goods. Today, I will discuss Rule 168 to 171. Till now, already I have discussed Rule 142 to 167 and it is my part 4 video. So now, already July 17, UPSC principal examination would be conducted. Examination is round the corner and this part would be very useful for you, and also for different exams this part is very useful for you. So my friends, with proper clarity I will discuss Rule 168 to 171 very concisely. So just you prepare patiently and with strategy, so definitely you will get the success. So my friends, please like my channel, share my channel and subscribe my channel. Your comment also is very important one, so that according to your comment I will resurrect myself, and definitely I will bring some good videos in subsequent time. So please subscribe my channel Asit Government Tool Guru. So now I am going to discuss part 4 General Financial Rule 2017 related to the procurement of goods, Rule 168 to 171. First one, you see Rule 168, contents of bidding document. Actually, what type of bidding documents needed by the procuring authorities related to the bidding process? Similarly, other side, what type of documents should be submitted by the bidders and suppliers if they want to get the award of contract. So first one, chapter instructions to the bidders. So all the bidders and suppliers, they must go through the instructions properly. They can get all the informations through the instructions. Next one, conditions of contract. It is also very important one, terms and conditions of contract. On what terms and conditions the particular procuring authority, on what terms and conditions the particular procuring authority want to procure the goods. So terms and conditions are very important one. Next one, schedule of requirements. Schedule of requirements, it is a recycle schedule. Actually, at what time the particular procuring authority need how much quantity of commodity, for a time schedule it is given. Okay, schedule of requirements. So according to the requirement of the procuring authority, the time cycle also it is given, at what time how much quantity of the goods require by the concerned procuring authority. Also it is mentioned in bidding document. Next one, specifications and allied technical details. Proper specifications also the procuring authority in bidding document, it is clearly mentioned. These are the different specifications. Actually, specification of goods, it is clearly given what type of quality of good needed, or what would be the design of the product. So like this, specifications also important one. The bidders, they must know what type of commodity actually needed by the procuring authority, and technical details also. If the procuring authority want to procure some machine tools and equipments, then they need some technical details. Okay, also it is clearly given in bidding documents. Chapter 5, price schedule, it is given different items and their prices. And you know that always the government procuring authority, they want to procure the goods within their stipulated budget, and also they want to procure the goods according to the reasonable price.
it must be compatible to the market price. So price schedule also given. Contract form, other standard forms if any to be utilized by the purchaser and the bidders. ये जो 7 चैप्टर्स है आपको रिमेंबर करना है. रूल 168 related to the bidding documents. If you go to different viva, they ask actually what type of bidding documents required by the procuring authority from the bidders. Just to remember all these things. Okay, all these things actually must be clearly given in bidding documents so that the bidders actually they can get complete information before submitting the documents. They know everything. They know the price schedule. They know the specifications. They know the technical details. They know the requirement schedule, everything. So according to this, they submit their documents and they are willing to get the reward of contract. Okay, it is very important part. Rule also you remember, rule 168. Next one, rule 169, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. हम ये जानते हैं कि ऐसा कुछ मशीनरी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो उसका वारंटी पीरियड होता है. नॉर्मल केस में व्हेन वी परचेज एनी टाइप ऑफ मशीनरी आइटम्स देन वारंटी पीरियड इज देयर. विदिन वारंटी पीरियड if any type of deformity is arising, then it can be rectified freely by the seller. So similarly, maintenance contract also very important one. Depending on the cost and nature of the goods, depending on the cost and nature of the goods to be purchased, may also be necessary to enter into maintenance contracts of suitable period, either with the supplier of the goods or with any other competent firm, not necessarily the supplier of the subject goods. So यहाँ पर आपको रिमेंबर करना है कि कॉस्ट एंड नेचर ऑफ द गुड्स को देखकर एक्चुअली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है. हम ये नहीं सोचेंगे कि जिससे हम गुड्स को, जो मशीनरी गुड्स को हम प्रोक्योर किया है, वही ओनली मेंटेनेंस फैसिलिटी देगा. ये नहीं है. अदर कॉम्पिटिटिव फार्म, अदर एनी कॉम्पिटेंट फार्म भी वो भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं. बट यू नो दैट बेसिकली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज डिटरमाइंड थ्रू द कॉस्ट एंड नेचर ऑफ द गुड्स, एंड द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी गिवन बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स और एनी अदर कॉम्पिटेंट फार्म. ओके, you don't think that only the supplier of the goods they can give the maintenance facility. Any other competent firm also they can give maintenance facility, right? Chalo, next one, maintenance contracts are especially needed for sophisticated and costly equipment and machinery. If the procuring entities, if they procure sophisticated and costly equipments, then maintenance contract is very essential one. Warranty period, free maintenance, and beyond the warranty period, then the maintenance facility would be available by paying price. Okay, so just to remember, sophisticated and costly equipment and machinery means procuring entities first they must check the maintenance contract. Okay, warranty period free one, but beyond the warranty period also procuring entities need maintenance contract. So they can get the maintenance contract from the concerned supplier or from any other competent firm. It may however be kept in mind that the equipment or machinery is maintained free of charge by the supplier during its warranty period. ये तो कॉमन चीज़ है. वारंटी पीरियड में फ्री मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड वारंटी पीरियड. जब मेंटेनेंस फैसिलिटी को अवेल किया जाएगा मगर वहाँ पर प्राइस पे किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ को आपको याद रखना है कि जो मेंटेनेंस फैसिलिटी कंसर्न सप्लायर, जो आइपिन्स फ्रॉम विथ सप्लायर, बेसिकली द machine goods, machine tools and equipments actually procured
they can give the maintenance facility, or the procuring entities they can make contract with any other competent firm for maintenance contract. It is very important one. And within warranty period, maintenance facility is free one, and beyond this period price would be paid, right? So rule 169, it is related to the maintenance contract. Next one, 170, it is related to the bid security. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. To safeguard against a bidder's withdrawing or altering its bid during the bid validity period, in the case of advertised or limited tender inquiry, bid security, also known as earnest money deposit, it is EMD, is to be obtained from the bidders. यहाँ पर हम एक सवाल पूछते हैं, हम एक क्वेश्चन आ जाता है. वन क्वेश्चन इज रेजिंग इन दिस केस, फॉर व्हाट रीजन द प्रोक्यूरिंग एंटिटीज need bid security from the bidders when they submit their bidding documents. Bid security means it is the amount paid by the bidders with bidding documents at the time of submission. जब वो bidding document submit करते हैं उसी समय वो bid security देते हैं. और in bidding documents it is clearly mentioned by the procuring entities कि how much percentage of bid security. Percentage means it is related to the estimation of goods. Estimation of goods का कितना परसेंटेज वो बिडर से bid security के आकार में लेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन आता है फॉर व्हाट रीजन प्रोक्यूरिंग एंटिटीज डिमांड bid security. क्योंकि हम ये जानते हैं, सपोज अभी बिडर्स bid security नहीं दिए, प्रोक्यूरिंग एंटिटीज बीड सिक्योरिटी डिमांड नहीं किया, क्या हुआ, बीड वैलिडिटी पीरियड में, जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है बीड ओपनिंग डेट टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो बीड ओपनिंग डेट होता है और जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनली हो जाता है, उसमें जो पीरियड होता है उसको हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलते हैं. तो बीड वैलिडिटी पीरियड में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बिडर्स वो उनका बीड को विथड्रॉ कर देते हैं. जब विथड्रॉ कर देंगे तब इस केस में क्या होगा कि टाइमली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टाइमली गुड्स नहीं मिलेगा टू फुलफिल द पब्लिक इंटरेस्ट. क्लियर? प्रोक्यूरिंग एंटिटीज, सपोज प्रोक्यूरिंग एंटिटीज डू नॉट डिमांड बीड सिक्योरिटी. Within bid validity period, sometimes within bid validity period, bidders they can withdraw their bids. If they withdraw their bids, then automatically for government departments it is delayed for obtaining goods, and it is against the public interest. नहीं कि ठीक टाइम में गुड्स को नहीं मिला क्योंकि बिडर्स बीड विथड्रॉ कर लिए, ठीक है. तो इस केस में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं दे पाया कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टाइमली वो गुड्स को प्रोक्योर नहीं कर पाया, तो इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड देयर इज वेस्टेज ऑफ मनी बिकॉज टाइमली द पब्लिक मनी इज नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली. तो इसीलिए जब बिडर्स सप्लायर्स उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं उसी के साथ वो बीड सिक्योरिटी देंगे. ठीक है, बीड सिक्योरिटी देने से क्या है ना, बीड वैलिडिटी पीरियड में वो बीड को विथड्रॉ नहीं कर सकते और बीड में कुछ चेंजेस नहीं ला सकते. वंस द बीडर्स इफ दे पे बीड सिक्योरिटी देन दे कैनॉट ऑल्टर द बीड्स और ऑल्सो दे कैनॉट withdraw their bids. If they do it, then their bid security would be forfeited. यदि वो bids को withdraw करेंगे कि वो bids में कुछ alter करेंगे, कुछ changes लाएंगे, तो उनका bid security forfeit हो जाएगा. तो इसके वजह से जब bidders उनका bidding document submit करते हैं तब उनको bid security देना पड़ता है. Bid security का alternate name है earnest money deposit, EMD. कभी कभी भाईबा में आपको पूछ लेंगे what is EMD, what is the importance of EMD. सो वही है बीड सिक्योरिटी.
एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस बिडर से एक्चुअली बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है. फ्रॉम व्हिच बिडर्स बीड सिक्योरिटी कैन नॉट बी डिमांडेड. फर्स्ट वन, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. अकॉर्डिंग टू द MSME procurement policy, according to the MSME procurement policy, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है कि MSME जो सप्लायर्स है उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा इन केस ऑफ एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी एंड लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा. टू इंक्रीज द बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस, ओके, और उनको प्रमोट करने के लिए MSME सप्लायर्स को प्रमोट करने के लिए तो उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा. ये MSME प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से है. यदि MSME सप्लायर वो बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे. नेक्स्ट वन, जो सप्लायर्स रजिस्टर्ड है सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सप्लायर सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन जैसे जेम पोर्टल में जो भी सप्लायर्स रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी सप्लायर्स रजिस्टर्ड है जेम पोर्टल में और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, तो इसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे. नेक्स्ट वन, जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो भी बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे. और अभी जो है जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, अकॉर्डिंग टू द DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो स्टार्टअप प्रोड्यूसर्स है वो जब बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा. तो इसको रिमेंबर करना है. फर्स्ट वन, MSME सप्लायर्स व बिडर्स व सप्लायर्स रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ई सप्लायर्स रजिस्टर्ड विथ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और स्टार्टअप प्रोड्यूसर्स. When they participate in bidding process, then they do not submit bid security, right? ये क्वेश्चन आ जाता है कि which bidders actually do not submit bid security, कि procuring entities do not demand bid security from which type of bidders. Question is asking, clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है टाइमिंग टू फर्निश बीड सिक्योरिटी. टाइमिंग, कब बीड सिक्योरिटी जमा किया जाएगा, व्हेन द बीड सिक्योरिटी वुड बी सबमिटेड. तो ये बहुत कॉमन चीज है, जब बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट होगा उसी टाइम वो जो टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट होगा उसी टाइम में बीड सिक्योरिटी सबमिट होगा. तो बीड सिक्योरिटी सबमिट विथ टेंडर डॉक्यूमेंट्स. समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन, हम अमाउंट को चलेंगे. जो बीड सिक्योरिटी का अमाउंट क्या होगा, जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स है उसका 2 to 5% होगा बीड सिक्योरिटी. ये जो 2 to 5% एक्चुअली इट इज डिटरमाइंड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और इट इज डिसाइडेड बाय द कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी. और बेसिकली आपको रिमेंबर करना है जो बीड सिक्योरिटी होगा वो 2 to 5% होगा. किसका ना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स. जितना वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोक्योर करना चाहता है कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी उसका 2 to 5% होगा. ये 2% होगा कि 3% होगा कि 4% होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा ना, कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी, कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री. ठीक है, जो गुड्स को प्रोक्योर करना चाहता है वो डिसाइड करेगा कि एस्टिमेटेड गुड्स का कितना परसेंटेज बीड सिक्योरिटी के आकार में लिया जाएगा. और बेसिकली रेंज है 2 to 5%. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको रिमेंबर करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ बीड सिक्योरिटी. डिटर्मिनेशन मीन्स मैं अभी बताया कि बीड सिक्योरिटी जो 2 to 5% होता है, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, इसको कौन डिटरमाइन करता है? बेसिकली इसको कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी ही डिसाइड करता है कि इतना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स
अभी वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है कि कोई कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी है, वो ऑलरेडी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दिया है क्लियरली कि इतना एस्टिमेट जो वैल्यू ऑफ गुड्स, जो गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा उसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्लियरली दिया गया है, उसका 2% की 3% की 4% जो बीड सिक्योरिटी लिया जाएगा, ठीक है, वो एक्चुअली कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी वो भी डिसाइड करेंगे बीड सिक्योरिटी कितना होगा, राइट। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस, कैसे बीड सिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी तो हम ये देख लिया, नाउ ऑलरेडी we have detected that bid security is 2 to 5% of the estimated value of the goods। तो ये बीड सिक्योरिटी को कैसे डिपॉजिट किया जाएगा टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ। अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये जो 5 टाइप्स है, ये डिफरेंट फॉर्म से बीड सिक्योरिटी को डिपॉजिट किया जाएगा, चाहे डिमांड ड्राफ्ट हो, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट हो, चाहे बैंकर्स चेक हो, चाहे बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हो, और अभी जो पॉपुलर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से बीड सिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, वैलिडिटी पीरियड ऑफ बीड सिक्योरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉर व्हाट रीजन कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री दे डिमांड बीड सिक्योरिटी फ्रॉम द बिडर्स for procuring goods। For what reason they demand bid security? क्यों वो बिडर से बीड सिक्योरिटी डिमांड करते हैं? 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि जो बीड वैलिडिटी पीरियड में बताया, जो बीड ओपनिंग डेट टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है बीड वैलिडिटी पीरियड। तो विद इन बीड वैलिडिटी पीरियड द बिडर्स कैन नॉट विथड्रॉ द बिड्स और कैन नॉट ऑल्टर द बिड्स। वो बीड को विथड्रॉ नहीं करेंगे कि बीड में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, इसके वजह से उनसे बीड सिक्योरिटी लिया जाता है। फॉर दिस रीजन एक्चुअली द प्रोक्योरिंग एंटिटीज डिमांड बीड सिक्योरिटी विथ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, और ये करते हैं वो बीड वैलिडिटी पीरियड में वो बीड को विथड्रॉ कर देते हैं और उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट किया जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या है, बीड सिक्योरिटी नहीं लेंगे, इफ द प्रोक्योरिंग एंटिटीज सपोज दे डू नॉट नीड बीड सिक्योरिटी, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी अराइजिंग, क्या प्रॉब्लम आएगा। आप जानते हो बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे तो कभी भी बीडर्स क्या करेंगे, उनका बीड को विथड्रॉ करेंगे, बीड वैलिडिटी पीरियड में उनका बीड को विथड्रॉ करेंगे और कुछ चेंजेस लाएंगे, तो ये सब होगा। और बीड विथड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिलेड होगा, टाइमली एक्चुअली प्रोक्योरिंग एंटिटी गुड्स को प्रोक्योर नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए क्या होगा, इट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसे बीडर्स जो कॉम्पिटेंट बीडर्स है वो बीड्स को विथड्रॉ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, टाइमली एक्चुअली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे कैन नॉट procure the goods and it is against the public interest, and also other side there is wastage of public money because timely the public money is not utilized properly। तो ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, वैलिडिटी पीरियड ऑफ बीड सिक्योरिटी। ये जो बीड सिक्योरिटी लिया जाता है उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, ये तो वेरी कॉमन है 45 डेज। मगर ये 45 डेज हम कैसे काउंट करेंगे, ये जो 45 डेज काउंट होगा बियॉन्ड द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्टिकुलर बीडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उससे 45 डेज आप काउंट कर लो, वही है बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड। 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स बेसिकली ऑन व्हिच डे द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू द पर्टिकुलर बीडर। जिस डेट में पर्टिकुलर बीडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, वही है फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, उससे आप 45 डेज काउंट कर लो, वही होगा बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन कंफ्यूजन, बिकॉज फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स ऑन व्हिच डे द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनली गिवन टू ए बीडर, राइट। वही है बीड फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। उसके
जस्ट ये है बियॉन्ड, उसके बाद उसी डेट्स के बाद आप 45 डेज काउंट कर लो जो बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड होगा। चलो नेक्स्ट वन, टाइमिंग टू रिटर्न बैक द बीड सिक्योरिटी ऑन सक्सेसफुल बीडर्स। जो जिन बीडर्स का बीडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि एक ही बीडर को तो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, तो इसमें अदर बीडर्स का जो बीड सिक्योरिटी को दिया है उनको कैसे उनको रिटर्न किया जाएगा। When the unsuccessful bidders they will return back their bid security, नहीं कि तो यहां ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और आगे में भी आएगा। एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी। फाइनल बीड वैलिडिटी में अभी बताया, फाइनल बीड वैलिडिटी मीन्स फाइनली द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू ए पर्टिकुलर बीडर। जिस डेट में दे दिया गया फाइनल बीड ऑफ जो अवार्ड दे दिया गया, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ओके वही है फाइनल बीड वैलिडिटी। ठीक है, तो एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी, तो जितना जल्दी दे देना है। ओके, जब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया इसके बाद इमीडिएटली जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर देना है। और लेटेस्ट में ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसके बाद आप काउंट कर लो, ऑन और बिफोर 30th डे जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आपको दो चीज यहां पर ध्यान देना है, एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी। फाइनल बीड वैलिडिटी मीन्स वही है अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया वही है फाइनल बीड वैलिडिटी। ओके, तो उसके बाद इमीडिएटली दे देना है। और नेक्स्ट है कि द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया पर्टिकुलर बीडर को, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके बाद आप काउंट कर लो ऑन और बिफोर 30th डे बीड सिक्योरिटी मस्ट बी रिटर्न बैक टू द अनसक्सेसफुल बीडर्स। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट, इन प्लेस ऑफ, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इन प्लेस ऑफ ए बीड सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन और नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ बीड सिक्योरिटी। इसमें क्या है, एक अल्टरनेटिव वे में यहां पर क्या है, कुछ डिपार्टमेंट्स है कि मिनिस्ट्री है, कुछ ऐसा प्रोक्यूरिंग एंटिटीज है, वो बीड सिक्योरिटी लेंगे मगर इट इज इन नॉन मॉनेटरी टर्म फॉर्म, वो मनी के आकार में बीड सिक्योरिटी नहीं लेंगे। पहले जो था तो मनी के आकार में, अभी ये जो है ओनली बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, वही इन प्लेस ऑफ ए बीड सिक्योरिटी, वो बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन में लेंगे। वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मनी दे डू नॉट नीड बीड सिक्योरिटी, इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म दे नीड बीड सिक्योरिटी। तो ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में बीड सिक्योरिटी क्या है उसको हम देखेंगे, वही है इन प्लेस ऑफ ए बीड सिक्योरिटी। जो बीड सिक्योरिटी बेसिकली जो पहले हम डिस्कस किया वो मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी, बट नाउ इस जगह में हम अभी क्या है जो कंडीशन, नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ बीड सिक्योरिटी, मनी के आकार में बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, एक डिक्लेरेशन में लिया जाएगा। तो उसको देख लीजिए, द बीडर्स विल बी सस्पेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, द बीडर्स विल बी सस्पेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द रिक्वेस्ट फॉर बीड्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम बीइंग एलिजिबल टू सबमिट बीड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एंटिटी दैट इनवाइटेड द बीड्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। यहां पर क्या है, एक बीड डिक्लेरेशन लिया जाता है, बीड डिक्लेरेशन लिया जाता है और वो डिक्लेरेशन में बीडर्स साइन करेंगे और ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है, यदि वो डिक्लेरेशन को डेविएट करते हैं तब उनको सस्पेंड किया जाएगा, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और कितना ईयर्स के लिए, कितना टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा वो भी बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में है, बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में उसके ऊपर एक्चुअली डाटा है। यदि बीड सिक्योरिटी के जगह आप बीड डिक्लेरेशन देते हो, बा जो जिसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ बीड सिक्योरिटी, वो डिक्लेरेशन को आप एक्सेप्ट किया, उसको जब आप डेविएट करोगे तब बीडर्स को क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये बीडिंग डॉक्यूमेंट में पहले है क्लियरली। जो भी प्रोक्यूरिंग एंटिटीज, इट मीन्स इन प्लेस ऑफ बीड सिक्योरिटी दे नीड एक्चुअली बीड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, वो ऑलरेडी बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर चुके हैं कि बीड डिक्लेरेशन होगा। यहां पर बीड सिक्योरिटी मनी के आकार में नहीं लिया जाएगा, बीड डिक्लेरेशन होगा
बीड डिक्लेरेशन बीडर्स एक्सेप्ट करेंगे, यदि उसको डेविएट करेंगे उनको स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा। तो देखेंगे कंडीशन। तो ये जो बीड डिक्लेरेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि बीडर्स टू साइन ए बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टिंग दैट इफ दे विथड्रॉ और मॉडिफाई देयर बीड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। जो बीड वैलिडिटी पीरियड है उसके अंदर वो बीड को विथड्रॉ करेंगे और बीड्स में कुछ चेंजेस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बीड वैलिडिटी और एक बार बता रहा हूं, जो बीड ओपनिंग डेट है और टिल द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिडिटी पीरियड, उसी के अंदर वो डिक्लेरेशन में क्लियरली मेंशन है यदि बीड वैलिडिटी पीरियड में बीड को विथड्रॉ किया जाएगा और बीड्स में कुछ चेंजेस लाएंगे बीडर्स तब उनको सस्पेंड किया जाएगा स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, इफ दे आर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, इफ दे आर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे फेल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड में क्या है, उनको अल्टीमेटली उनको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, पर्टिकुलर बीडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर वो अभी साइन नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको फाइनली सिलेक्ट किया गया पर्टिकुलर बीडर को, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला मगर वो फेल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में भी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये भी बीड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है और ये डिक्लेरेशन जब वो एक्सेप्ट किए हैं वहां पर भी मेंशन है। थर्ड क्या है, टू सबमिट ए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बिफोर द डेडलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर द डेडलाइन डिफाइंड इन द रिक्वेस्ट फॉर बीड्स डॉक्यूमेंट। बीड्स एक्चुअली बीडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन है कब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है, उसका एक डेडलाइन होता है। डेडलाइन के पहले परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे देते हो तब उस केस में भी सस्पेंड किया जाएगा। तो ये जो 3 कंडीशंस है ना, इसमें क्या है, बीड सिक्योरिटी यहां पर मनी के आकार में नहीं लिया जाएगा, ये ऑल्टरनेटिव है, इट इज ऑल्टरनेटिव ऑफ बीड सिक्योरिटी। ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ बीड सिक्योरिटी, पहले तो वो मॉनेटरी टर्म था, ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ बीड सिक्योरिटी। बीड सिक्योरिटी के जगह एक बीड डिक्लेरेशन होता है, उसको बीडर्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और यदि ये जो सर्कमस्टांसेस है उसको डेविएट करेंगे तो उनको स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम सस्पेंड किया जाएगा। तो कुछ समय क्या है, कुछ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज और कुछ प्रोक्योरिंग एंटिटीज वो बीड सिक्योरिटी के जगह वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ बीड डिक्लेरेशन देते हैं। वो ज़्यादातर कंपटीशन ज़्यादा होता है, ये सोचते हैं कि बीड सिक्योरिटी लेने से सम प्रोक्योरिंग एंटिटीज दे थिंक दैट ड्यू टू बीड सिक्योरिटी competition is curtailed, competition is reduced. So for effective competition in place of bid security, okay, they need bid declaration. वो बीड सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बीड डिक्लेरेशन ले जाएंगे बीड सिक्योरिटी के जगह। इसमें क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्चुअली कंपटीशन वुड बी मोर। समझ में आ गया? तो ये अल्टरनेटिव है बीड सिक्योरिटी का, जिसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ बीड सिक्योरिटी और बीड डिक्लेरेशन कहा जाता है। यहां पर बीड सिक्योरिटी मनी के आकार में नहीं लिया जाएगा, एक डिक्लेरेशन के आकार में लिया जाएगा, राइट। तो पूरा डिस्कस किया बीड सिक्योरिटी के ऊपर। अभी रूल 171 परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है और आगे में भी आएगा। टू एंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल बीडर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपको जानना है कि व्हेन द पर्टिकुलर बीडर दे गिव द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, आपको याद रखना है जिस बीडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिस बीडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसी को ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है, सबको नहीं। जिसको फाइनली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिस बीडर को, द बीडर व्हिच वन गेट द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस बीडर ओनली पे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो देता है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस को क्या है, बेसिकली जो प्रोक्योरिंग एंटिटीज है, उनका जो अथॉरिटीज है, वो देखते हैं कि जो बीडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि वो जो गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द बिडिंग, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस द बीडर्स शुड बी सप्लाइड गुड्स। तो इसको एंश्योर करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है।
according to the terms and conditions, according to the conditions of contract, whether the bidder supplying the goods or not, इसलिए उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाता है। तो सेकेंड जो पॉइंट है, अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वर्क्स एंड प्लांट्स, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर गुड्स, वर्क्स एंड प्लांट्स को आप छोड़ दीजिए यहां पर, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर गुड्स द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन केस ऑफ गुड्स द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स। ये जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 to 10% होता है, बेसिकली एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स का 5 to 10% होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स का 5 to 10% होता है। मगर ये जो 5 to 10% ये जो होता है वो जैसे 5 की 6% की 7%, 8%, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो वो कैसे होता है ना, मार्केट कंडीशंस, जो गुड्स का मार्केट कंडीशंस और जो कमर्शियल प्रैक्टिस, गुड्स का कमर्शियल प्रैक्टिस, ये दोनों को देखकर एक्चुअली परसेंटेज, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का परसेंटेज को फिक्स किया जाता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स का कितना परसेंटेज जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स है उसका कितना परसेंटेज एक्चुअली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के आकार में द बिडर और सप्लायर उसको जमा करेगा। ठीक है, तो दो चीज को आपको ध्यान देना है, एग्जाम में आता है बेसिकली, मार्केट कंडीशंस ऑफ द गुड्स एंड कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ द गुड्स, अकॉर्डिंग टू दिस द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज डिटरमाइंड, राइट। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, अभी मैं बताया जो अमाउंट होता है परफॉर्मेंस 5 to 10%। अच्छा, ये जो 5 to 10% होता है वो कैसे हम ये परसेंटेज को लेते हैं? बेसिकली 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जितना वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फाइनली बिडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इतना वैल्यू ऑफ गुड्स को आपको सप्लाई करना है, तो जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसका 5 to 10% होगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो ये जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो 5 to 10, चाहे 5% की 6% की 7% की 8%, ये कैसे डिटरमाइन होता है ना, अभी मैं बताया कि गुड्स का मार्केट कंडीशंस क्या है और उसका कमर्शियल प्रैक्टिस क्या है, उसको देखकर एक्चुअली परसेंटेज को फिक्स किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, फर्निशिंग ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, जैसे बीड सिक्योरिटी जैसे दिया जाता है, यहां पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी दिया जाएगा। ये जो 5 to 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स का, वही है डिमांड ड्राफ्ट के आकार में, कि फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक, कि बैंक गारंटी, कि ऑनलाइन पेमेंट, ये चारों को आपको याद रखना है। वही है जैसे बीड सिक्योरिटी था, तो यहां पर भी वही है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट, बैंक गारंटी, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, इस तरीके से फर्निशिंग होगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अच्छा, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड क्या है? जैसे बीड सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड था 45 डेज, बियॉन्ड द बीड वैलिडिटी पीरियड, नहीं कि जिस फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड मींस जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसके बाद 45 डेज था बीड सिक्योरिटी का। वैसे ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड हम कैसे काउंट करेंगे? जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड है वो 60 डेज है। अच्छा, ये 60 डेज कैसे काउंट होगा? 60 डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस। 60 डेज कैसे काउंट होगा ना? बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस था वो कंप्लीट हो गया, और जो वारंटी ऑब्लिगेशंस था इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस, ये होने के बाद 60 डेज आपको काउंट करना है। ठीक है, ये जो 60 डेज, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये 60 खाली ओनली 60 डेज रिमेंबर करने से, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है ना, वैलिड 60, अरे इस 60 डेज को हम कैसे काउंट करेंगे? हाउ कैन यू कैलकुलेट 60 डेज? ना, इट इज 60 डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी। उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, इसमें इंक्लूडिंग है वारंटी ऑब्लिगेशंस। पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस खत्म होने के बाद आप 60 डेज को काउंट करना है, वही है वैलिडिटी पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन बीड सिक्योरिटी रिफंडेड टू द सक्सेसफुल बिडर, ये लास्ट पार्ट है आज का वीडियो का। तो जो हमको तो पता है, वी नो दैट कि
जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी उनको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है, as soon as possible आफ्टर फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, as soon as possible। और एक लेटेस्ट में था ऑन और बिफोर 30th डे, ऑन और बिफोर 30th डे आफ्टर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे आप 30 डेज काउंट कर लो, उसी के अंदर बीड सिक्योरिटी को दे देना है अनसक्सेसफुल बीडर्स को। अदरवाइज जितना as soon as possible आफ्टर फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, इट मीन्स आफ्टर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट as soon as possible the bid security of the unsuccessful bidders must be returned, नहीं कि वो था। मगर यहां पर क्या है, जो सक्सेसफुल बीडर है जिसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको बीड सिक्योरिटी कब मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सक्सेसफुल बीडर है जब वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेगा, ओके, व्हेन द प्रोक्योरिंग एंटिटी एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फ्रॉम द बीडर, देन एट दैट टाइम his bid security should be refunded to the successful bidder on receipt of performance security। ओके, जब बीडर से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाएगा तब उसका वही है, जो बीडर सक्सेसफुल बीडर है जिसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको हम सक्सेसफुल बीडर बोलेंगे। जब उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाएगा तब उसका जो बीड सिक्योरिटी है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मगर जो अनसक्सेसफुल बीडर से जब अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद उसको as soon as possible दे देना है, अदरवाइज जिस डेट में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे आप 30 डेज के अंदर बीड सिक्योरिटी को अनसक्सेसफुल बीडर्स को दे देना है। मगर यहां पर क्वेश्चन है सक्सेसफुल बीडर जिसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला उसका बीड सिक्योरिटी को कब रिटर्न किया जाएगा ना, जब वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा तब उसका बीड सिक्योरिटी को रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये आज का वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और patiently you go through the video, you can get complete information। Just I have tried to explain everything up to your expectation, and definitely you can detect some drawbacks and lacunas, please pardon me। Just always I am trying in my video, always I am trying to fulfill the expectations of my beloved viewers। So कहाँ पर भी कमी लगता है, in some areas if you detect any loophole or bottlenecks, please forgive me। So again इसके बाद फिर रूल 172 to 175 लास्ट वीडियो होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर। सो थैंक यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु।